कैसे और कितना रेवेन्यू अभी तक आप जनरेट कर चुके हैं through all of this in your life? There was a lot of players into the cab management, providing cab services, but driver management was not an organized industry at all at that moment of time. So that moment हम Excel पे ही काम करते थे. How do you manage that safety concerns in your Indian drivers? उसका रेगुलर फीडबैक मैकेनिज्म बिल्ड किया है ऐप में. तो जैसे ही हमें कुछ फीडबैक्स गलत है इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, उसको ब्लॉक किया जाता है. How do you make a profit? Keeping that margin low, so driver and customer feel that उतना तो मार्जिन होना चाहिए. How they will survive? So आपको क्या लगता है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आने वाले अबाउट 2050 लेट अस कंसर्न अभी तो आने वाले 10 साल में मुझे नहीं लगता है इंडिया में एटलीस्ट ये चीजें होगी, बट 30 to 40 years आफ्टर क्या ये चीजें होगी तो कैसे मैनेज? ड्राइवरलेस कार रोड पे चलानी है तो वहाँ पे डिसिप्लिन भी होना चाहिए. ईवीज रहती है, इलेक्ट्रिक कार्स अगर हम रहते हैं तो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ गेटिंग कार्बन क्रेडिट फॉर द कॉर्पोरेट्स. जर्नी स्टोरी में कृष्णा सर का स्वागत है. कैसे हैं आप सर? आई एम डूइंग ग्रेट यार, गोइंग ग्रेट. सर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नॉट एट ऑल, इट्स अ ग्रेट प्लेस. मेरा ये रहेगा आपसे, इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज क्या है मैं बताता हूँ. जैसे एग्जांपल ले लो, मैं ओला उबेर, जिससे भावेश अग्रवाल ने एक चीज नोटिस किया कि लोग पहले जाते थे ऑटो को रोक के, कैब को रोक के या जो टैक्सी को रोक के जाके बैठ के फिर ट्रांसपोर्ट कहीं करते थे, मीन्स कहीं भी जाते थे. बट ये भावेश अग्रवाल जो सीईओ आज ओला के, वो नोटिस करके ऐप बनाया, नॉर्थ स्टार्स उस पर वर्क ऑन किए और एक ओला प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जिसमें लोग सिग्नल करने लगे. तो पहला चीज ये ट्रांसपोर्टेशन इशू था, सॉल्व कर दिए. वैसे ही फिर चीजें और भी हाई प्राइसेस को रिलेटेड, तो फिर और भी नए नए प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे रैपिडो ले लीजिए. फिर उन्होंने नोटिस किया कि बाइक से भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बट किसी कारण वो भी बैन हो गया था. तो आज भी आपको लगता है वो ओला उबेर इन रैपिडो हो गया, फिर इनड्राइव हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म्स आज भी मार्केट में है, तब भी आपको लगता है कि क्या आज भी कोई इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज है? Yes. So first of all, thank you for having me here to explain about our business, so that will connect all of you guys how this our business is going to help the transportation industry. So just to give brief about me, my name is Krishna Badane. I'm founder of Indian Drivers. We started this journey with my two college friends only. So like you, we have also been part of a friend circle, and we get into this business. So this business is started with small incidents. When I was working for a bank, precisely in ICICI Bank, I got a call from my friend from my hometown that his father is looking for a driver job. Okay. So I told him I am working in a bank and we got a regional office, and there are a lot of people owns the car, and I think we can get a job for him. Okay. Not to worry. So that way he came to Pune. I made multiple my seniors that he's the person looking for a driver job, and in short of half an hour's time, I understood they don't need a person like him because everyone has their selection criteria. So I got to know about that people need a driver of specific age group. Someone need a bachelor, someone need a married, someone might be aware about the Pune city routes. So that way I felt very bad that someone has came to me, and I asked him to come down to Pune, but I couldn't help me out. So I given a small advertisement into classified that we have a driver, can someone have the requirement of driver. So I got multiple calls from a lot of people that we have driver's requirement, can you please ask him to send us at our address, and he got a job in second day itself. वो ग्रेट. So that has given me a thought in there are a lot of people out there who are looking for a driver job like my friend's father. At the same time, there was a huge base of car owners who are looking for drivers. So I understood there is a gap between both the parties. Built a bridge between these, so it will be convenient from both parties to connect each other. So from that moment, I was looking out for what can be done to solve this problem, because with respect to my family, we don't have that kind of a business background, but
in bank I supposed to meet to the corporates and industry man and businessman to get their finances done. So I was quite inspired by their stories, how they have grown, how they are going. So I was inspired to their stories and learnings, and I had that feeling I should own any business, but I was clueless what to do and how to do. And that's how this scratch raw idea, we started thinking on that lines how we can convert it into a business model. Cab services, but driver management was not an organized industry at all at that moment of time. So that way we started gradually. My partner Parag took the initiative. He left the job and he got a confidence. Yes, there is something we can sort it out. So he took the first step. Then he completely take the ownership of the business, because taking a jump, it's very difficult because we have our own liabilities in terms of our EMIs, running our home and everything. So that way, let's start with one by one. If things works out, then I will start the entire leave the job and get into the business. So that's how this story started. We given a small advertisement for the customers again. Are you looking for a driver in Times of India? And we got multiple calls. Then that gives us the confidence. Yes, the idea has something potential to run the show. So that way we understood there is a supply and demand, and we can bridge the gap now. And that's why we started a small firm, Proprietorship Indian Drivers, and that's how this journey started initially in transportation industry. तो आपने देखा होगा कि majority of transport industry is unorganized, right? Over the period of last decade, जहाँ पे काफ़ी सारे players market में आ रहे हैं, they are coming with a lot of new technology features that is enabling to go for a longer horizon business models. Earlier क्या होता था कि एक 10-15 गाड़ी है, he was a transporter, he's supposed to manage that show. But as the industry is going, as India is growing exponentially, we need huge players to run the show. तो just to give a thought about challenges क्या है, तो unorganized है. Unorganized क्या है? Unorganized means वहाँ पे पे स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है, वहाँ पे टाइमिंग्स फिक्स नहीं है. आप देखेंगे तो ड्राइवर वर्क्स फॉर 14 आवर्स 15 आवर्स, वो 8-8 घंटे भी ड्राइव करते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द चैलेंज कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स नहीं है. दैट इज वन ऑफ द की चैलेंज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. फिर कैब हेलिंग में आ गए, ओला उबर एंटर्ड इनटू द मार्केट. फिर मेन प्रॉब्लम बचा था कि ड्राइवर मैनेजमेंट का. देन वी गेट इनटू द मार्केट कि यहाँ पे ड्राइवर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बिकॉज पीपल ओन्स द कार, स्टिल दे गो फॉर एन ओला और उबर. लोगों के पास गाड़ी है बट फिर भी ओला उबर क्यों बुक करते हैं? बिकॉज ड्राइवर नहीं मिलता है. बट लोगों के पास ऑप्शन ड्राइवर्स का नहीं है. दिस आइडिया बिकम मोर फेमस because they always happy to have their own car itself, because अपनी गाड़ी का खुद का एक कंफर्ट अलग होता है, राइट? एक अलग हाइजीन होता है, क्लीनलीनेस मेंटेन होता है. तो लोगों को अच्छा लगता है कि अगर खुद का कार हम ड्राइव करके ले जाते, somebody can drive for them. So that's how we came into the market कि यहाँ पे एक गैप है जहाँ पे हम फुलफिल कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ आवर हिस्ट्री और आवर बिजनेस स्टार्टेड. सो कॉलेज में थे तभी आपने ये चालू कर दिए थे इंडियन ड्राइवर्स? नहीं, मैंने जब मेरा MBA पूरा हुआ, आई स्टार्टेड माय करियर इनटू बैंकिंग इंडस्ट्री. तो ICICI HDFC बैंक में मैंने काम किया है. तो आफ्टर 3-4 years ऑफ टाइम, जहाँ पे एक लेवल पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ रहा था कि बिजनेस क्या होता था. बैंक्स में जाके वी सपोज टू रिव्यू बैलेंस शीट ऑफ द क्लाइंट्स. ओवरऑल आपने 3 to 4 years आपने कॉर्पोरेट फील्ड्स में जॉब किया, उसके बाद एक स्टार्टअप में चालू कर दिया. एग्जैक्टली. तो ऑलमोस्ट 4 साल बाद हमने बिजनेस को एक्चुअली ऑर्गेनाइज वे में चालू किया. इट वाज अ रॉ आइडिया बेसिकली व्हिच वाज रनिंग इन माइंड फॉर 3-4 months. देन वी थॉट ऑफ, हाँ, because coming from middle class background, it's very difficult to quit the job and enter into the business. So सर आपने एज अ ड्राइवर के लिए कैसे एक मैनेजमेंट ओपन किए, मतलब ड्राइवर्स को कैसे हायरिंग किए एंड आल्सो स्टफ्स, बिकॉज ड्राइवर्स इज सम ऑफ द रिलेटेड टू द सेफ्टी. Correct. When I talk about the Ola and Uber, it's about the safety first of all. Right. और सेम चीज आप भी ये चीज कर रहे हैं कि ड्राइवर्स, आई मीन मुझे कहीं जाना है, मेरे पास कार है मेरी खुद की, Correct. बट आप मुझे अपना ड्राइवर देंगे. True. राइट?
आप ऐसे ही वर्क करते हैं। राइट। सो अब इसमें बात आती है, आप ड्राइवर्स के कैसे कंसर्न्स कैसे हैंडल करते हैं ड्राइवर्स, और बहुत Okay. बिकॉज आपके पास बहुत ड्राइवर्स होंगे, Right. यू हैव अ मैनेजमेंट ऑफ दोस, आप करेक्ट। कैसे उसे हैंडल करते हैं, और आपने बेसिकली एकदम स्टार्टिंग कैसे की थी, हाउ दिस ड्राइवर्स, आपने ड्राइवर यहाँ से कैसे लिए और टेक में कैसे तरीके से शिफ्ट हुए, मतलब शिफ्ट हुए, और ओवरऑल कैसे मैनेजमेंट आपका इंडियन ड्राइवर्स हैज द सिस्टम ऑफ वर्क फ्लो कैसे चलता है? ओके, सो इनिशियली जब हमने ड्राइवर्स प्रोवाइड करना शुरू किया, सो इट वाज अ मैनुअल प्रोसेस, बट बिकॉज तब ऐप का भी एग्जिस्टेंस नहीं था, 2009-10 की बात कर रहे थे, बिकॉज ऐप तब इवॉल्व हो रहे थे, तब इंडस्ट्री स्टार्ट हो रहा था और टेक्नोलॉजी वाज वेरी कॉस्टली अफेयर, राइट? तो तब टेक्नोलॉजी ऐप पे अडोप्ट करना इज वेरी बिग थिंग। सो दैट मोमेंट हम एक्सेल पे ही काम करते थे, लोगों से जब फोन्स आते थे हम एक्सेल पे नोट करते थे एंड मैन्युअली ड्राइवर्स को फ़ोन करके एलोकेट करते थे। सो दैट्स हाउ वी सपोज टू मैनेज द ड्राइवर मैनेजमेंट। तो इसमें एक पार्ट आता है कि जैसे ड्राइवर्स को ऑनबोर्ड करना, आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, तो ऑनबोर्डिंग करना इट्स वेरी क्रिटिकल टास्क बिकॉज वी आर इनटू ड्राइविंग, सो इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ensure drivers are as per the standards of our requirement। एग्जाम्पल हमारा SOP है, जहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि ड्राइवर का क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक हुआ है क्या, उसका रेसिडेंस वेरिफिकेशन होता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जाके हमारा आदमी जाके विजिट करके आता है, डज इट रियली स्टे देयर, तो वेरिफिकेशन होता है सेकंड उसका। थर्ड उसका KYC चेक होता है, आधार ऑथेंटिकेशन होता है उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक होता है, वैलिडिटी whether it is genuine। तो once it's through with these things then only he get activated on our platform। तो इनिशियली जैसे हम ऑफलाइन मैनेज करते थे तो चैलेंजेस काफ़ी थे कि ड्राइवर्स का एक्सपायरी डेट इंश्योर करना, कि उसका अगर एक्सपायर हुआ हो तो उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक करना, ये हमें पॉसिबल नहीं था। बट जब ग्रेजुअली जब ओला उबर ऐप्स आए मार्केट में, सो हमें भी आइडिया लगा कि हम ऐप एक्सप्लोर कर सकते हैं और हम इसको स्केल पे लेके जा सकते हैं इस बिजनेस को, बिकॉज मैन्युअली तो लिमिटेशंस है, नंबर ऑफ बुकिंग्स, नंबर ऑफ ड्राइवर एलोकेशंस की, हम कितनी टीम बिठाएंगे और कितना करेंगे। तो वी गॉट टू नो दैट कि अगर हम ऐप पे जाते हैं तो यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सिटीज में ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स सो ग्रेजुअली हमने हमारा खुद का ऐप भी डेवलप किया इंडियन ड्राइवर्स का, विच इज़ मेड फॉर कस्टमर्स, जहाँ पे कार ओनर अपना प्रोफाइल क्रिएट करके रिक्वेस्ट डाल सकता है। और दूसरा जो ऐप है हमारा, जिसको हम ID ड्राइवर ऐप नाम से प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, जहाँ पे कोई भी ड्राइवर्स जिनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए या फिर उनको जॉब्स करने हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सो दे कैन डाउनलोड द ID ड्राइवर ऐप एंड दे कैन एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस द नेशन। तो जहाँ पे ड्राइवर अपना प्रोफाइल अपडेट करता है और उसको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फ्री में हम जॉब देते हैं। अभी तक हमने अराउंड 18,000 ड्राइवर्स को जॉब दिए हैं। ओह फैंटास्टिक, दैट्स अ ग्रेट नंबर। यस, और हमारे पास 60,000 ड्राइवर रजिस्टर्ड है अक्रॉस इंडिया के हमारे प्लेटफॉर्म पे, एंड दैट इज ग्रोइंग मंथ ऑन मंथ। तो ऐप इज ओपन फॉर ऑल, कोई भी ड्राइवर इसको डाउनलोड करके उनका रजिस्ट्रेशन करके दे कैन लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और वहाँ पे जॉब को अप्लाई भी कर सकते हैं। बट उनको क्लाइंट की यहाँ पे जब मुझे भेजना होता है, देन वी विल इंश्योर उसका वेरिफिकेशन इज डन, उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, उसका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, देन ओनली ही विल बी सेंटेड एट द क्लाइंट प्लेस, बट ही विल गेट द फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब, दैट इज द एश्योरिटी इज गिवन बाय अस। So this is the way we operate। Technology is really helping us to scale further because इतना सारा database manually रखना, maintain करना practically possible नहीं है। So let's explore your, of course आपका ऐप है, जितने भी ऐप होते हैं हम उसे डाउनलोड करके चेकआउट करते ही है। Right. So this is simplest UI I have ever saw, frankly speaking। Okay, This is the simplest UI and the one of the best UI। So overall local round trip how decision होंगे। So आप ऑन गोइंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे मुझे अभी जैसे ओला प्रोवाइड करता है, तो आप वैसा नहीं करते हैं? अभी यहाँ पे आपको दिखेगा अराउंड 60 मिनट्स का आपको बफर रहेगा, because you know driver is coming from some areas, he may be or may not be having his two-wheeler with him। In Ola or Uber they are definitely sitting in the car, so they know the distance and they'll reach there। Exactly। In our case driver एक तो घर पे है या फिर ड्यूटी पे है एंड ही इज नॉट श्योर कि उसके पास टू व्हीलर है नहीं है, उसको PMT का एक्सेस है, कभी उसको रिक्शा भी लेना पड़ेगा, दैट्स व्हाट द डिस्टेंस वो उसको इंश्योर करना है, तो वो टाइम रखा है उसमें। और दूसरा जो पॉइंट था लोकल आउट स्टेशन, देयर आर 2 टाइम्स ऑफ ट्रिप फॉर द कस्टमर्स, इफ कस्टमर्स को ड्राइवर चाहिए सो दे कैन बुक फॉर लोकल एंड आउट स्टेशन जर्नी। एंड
अभी अभी आपने जो यूआई की बात की, डेफिनेटली हमारे मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स आर लेडीज, सीनियर सिटीजन. So considering their usage, they have kept it very simple so that they can flawlessly go ahead. ओके, सो मैंने एक्चुअली डेस्टिनेशन में बैंगलोर डाला हूँ, इट्स आउट स्टेशन ट्रिप. Correct. सो आप लोग मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, व्हाट इज अबाउट Right. ऑटोमेटिक कार और मैनुअल कार, राइट? Exactly, right. Same. So user should get decent driver as per their car, right? So we have cars from Maruti 800 to Mercedes and luxurious cars. brand cars. एग्जैक्टली व्हाट आई कैन सी हियर, योर कार से मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, so बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं. Correct, कि कार चूज करना है. सो इट्स आर कार, मेरे पास फैंसी कार है. कार है. Because वो ड्राइवर को ड्राइविंग करनी आनी चाहिए. That's also important, right? जिस वे में मार्केट डेवलप हो रहा है, ब्रांड्स डेली नए ब्रांड्स आ रहे हैं, तो वी एंश्योर दैट जो आपका कार है वो ड्राइवर ने पास्ट में चलाई है. सो इट शुड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू व्हाइल ड्राइविंग. That's a fantastic idea, Krishna sir. Frankly speaking, right now. Okay, this is actually the summary page. So आप ये प्राइजेस जितने हैं, मुझे प्राइजेस का स्ट्रक्चर जानना है. The first of all thing. Okay. Like ओला एंड उबेर का हमें सबको पता है, पब्लिकली है सब, कैसे स्ट्रक्चर किलोमीटर एंड ऑल्सो स्टफ होता है. तो मैं चाहता हूँ आपका सिस्टम कैसे करते हैं इंडियन ड्राइवर्स का इन द प्राइसिंग, वो मुझे बताइए. टिपिकली इफ यू लव टू सर्वाइव इन द मार्केट, अगर आपको लॉन्गर होराइजन में बिजनेस रन करना है एंड आपको कॉम्पीट भी करना है और आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना है, सो एट द सेम टाइम आपको मंथ ऑन मंथ वो ग्रोथ, जो कंपनी का विजन मिशन अलाइंड है उसके वे में ग्रो भी होना है. सो विल हैव टू एंश्योर प्राइसिंग इज बिकम मोर क्रिटिकल. सो प्राइसिंग कंसिडर करते हुए एक तो ड्राइवर का एक एस्पेक्ट आ जाता है कि वेदर वो कॉस्ट जस्टिफाई हो रही है, ड्राइवर इज लर्निंग अप टू द मार्क, बिकॉज ड्राइवर इज आवर ब्रांड एम्बेसडर. बिकॉज इंडियन ड्राइवर्स को लोग ड्राइवर का जिस टाइप का बिहेवियर है वैसे लोग इंटरप्रेट करेंगे, बिकॉज हम खुद तो नहीं जाते हैं, बिकॉज आवर ड्राइवर इज द फ्रंट फेस ऑफ द सर्विस. तो ड्राइवर खुश रहना, ही शुड गेट दैट वेजेस जिसमें उसका घर चलेगा, उसकी फैमिली रन होगी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वी एंश्योर दैट कि जो मार्केट स्टैंडर्ड्स है, जो ड्राइवर का कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो इसमें एंश्योर होना, दैट इज़ द फर्स्ट. सेकंड, एट द सेम टाइम कस्टमर के लिए भी वो यूजर फ्रेंडली लगे. इट शुड नॉट बी अ कॉस्टली अफेयर टू, right? You have to see the both the party. Exactly. Yeah, We have to keep that balance, that both the parties get the win-win point, right? So that's how the pricing has been made. Let's say for in Pune, there is a 500 rupees cost for 4 hours bookings for driver. और वहाँ पे आगे पैकेजेस बने गए हैं और कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउट स्टेशन में पैकेजेस बनाए गए हैं. जैसे काफ़ी लोग ड्राइवर हायर करते हैं मुंबई, जिनका मीटिंग्स रेगुलरली जाना होता है, सो दे स्पेंड अराउंड 7-8 आवर्स इन ड्राइविंग. तो करीबन हमारा अगर 10-12 घंटे का भी पैकेज होता है तो वो करीबन 1000 रुपये में हो जाता है. तो दे आर पुणे टू मुंबई, करेक्ट. 10-12 घंटे में 1000 रुपीज एंड ही इज सेविंग दैट 7-8 आवर्स. सो आज लोग को मेजॉरिटी काम फोन पे चालू होता है, सो दे कैन यूज देयर फोन कॉन्फिडेंटली. ड्राइविंग अगर नहीं करना है तो they can use the laptop also while driving. So that way a lot of people use that outstation service to save their driving time. So which is one of the toughest task in today's time, जहाँ पे ट्रैफिक जैम्स है, रोड का कंडीशन खराब है, तो ड्राइवर्स becomes an hand holding for to increase its overall productivity. Right. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. बीच में एक कस्टमर मुझे एक इवेंट में मिला एंड ही गॉट टू नो आई एम फ्रॉम इंडियन ड्राइवर्स. तो मैंने उनको पूछा कि सर आप कब से ड्राइवर लेते हो. तो ही वाज अ कार्डियक सर्जन एक्चुअली, राइट. तो वो बोला मुझे रेगुलर तो ड्राइवर नहीं लगता है, लेकिन जब भी मुझे कहीं दूर हॉस्पिटल्स में जाना होता है, वीक में 2-3 बार होता है जनरली, तो आई हायर ड्राइवर. बोला आप जनरली क्यों, व्हाट इज द बेसिक रीजन. तो वो बोले मैं जो सर्जरीज करता हूँ दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बहुत क्रिटिकल होते हैं, और मैं जनरली मेडिटेट करता हूँ जब मैं ड्राइविंग टाइम में. सो आई यूज दैट टाइम टू मेडिटेट, बिकॉज मेरा काम कंसंट्रेशन का है. और सो आई गॉट शॉक कि लोग इस मेडिटेट करने के लिए भी ड्राइवर हायर करते हैं, राइट. सो अर्लियर एक दिन था जहाँ पे लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ड्राइवर रखते थे, राइट. जहाँ पे 10-20 साल पहले अलग तरीका था, चैलेंजेस ट्रैफिक के नहीं थे, बट स्टिल पीपल के पास, लोगों के पास ड्राइवर था. क्यों था? बिकॉज दे वुड लाइक टू शो दैट दे आर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यस मेरे पास ड्राइवर है. आज लोग
सबका तरीका अलग अलग है। लोग ड्राइवर हायर करते हैं मेडिटेशन करने के लिए, लोग हायर करते हैं फ़ोन पे बात करने के लिए। एक कस्टमर ने मुझे बोला कि मैं मंथली ड्राइवर आपका हायर किया है मंथली बेसिस पे, बिकॉज़ वो ड्राइविंग टाइम में मैं फैमिली से कनेक्ट करता हूँ। दे आर लिविंग इन सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो वो ड्राइविंग टाइम वो 15-20 मिनट आई कनेक्ट टू माय फैमिली, आई स्पीक टू माय मॉम डेली। So I got to know a lot of reasons why people hire the drivers. Hire the drivers for their uses. Actually मैंने जब आपके बारे में रिसर्च करना किया था लिंक्डइन पे, frankly speaking लिंक्डइन से मैं आपका प्रोफाइल गो थ्रू कर रहा था। तो ये जो सिस्टम आपका जब मैं समझा ना, इट्स एक्चुअली यूनिक पॉइंट। मुझे जितना पता है सम ऑफ द अबाउट 10% लोग ही ये कर रहे हैं, मुझे जितना अभी एज ए कम्पेयर टू द महाराष्ट्र। मुझे लगता है 10% लोग, नहीं तो इनडायरेक्टली तो क्या, हाँ ड्राइवर है नहीं है, अच्छा एक्स्ट्रा, बट आप जो टैग के थ्रू कर रहे हैं, जो ऐप के थ्रू बना के कर रहे हैं, इट्स अबाउट 10% लोग ही इतना कर रहे हैं। और भी कोई कंपनीज होगी सिमिलर टू दैट, बट इट्स फाइन, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन ड्राइवर्स। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि ये 100% मार्केट almost yes 100% what unorganized till the time professional players coming into picture। जब हम 2009-10 में आए थे तो we were the only player, organized player। नहीं तो किसी एक बंदे के पास 10-15 ड्राइवर के नंबर रहते थे, वो फ़ोन उसके पास क्लाइंट क्या था वो 10 में से एक को भेज देता था, मैनुअल प्रोसेस। बट वो एक पॉइंट के बाद रुक जाता था, या फिर एक ड्राइवर ने नहीं बोल दिया तो दूसरा उसके पास ऑप्शन नहीं रहता था। सो नाउ अभी टेक की वजह से एक ड्राइवर ने रिजेक्ट कर दिया, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ ड्राइवर लाइव ऑन दैट, तो इमीडिएटली दूसरा ड्राइवर एलोकेट हो जाता है। तो वो प्रोसेस इट्स बिकम वेरी इजी, कस्टमर को इमीडिएटली ड्राइवर मिल जाता है, ड्राइवर को भी उधर रुपीस मिल रहा है, इधर कस्टमर को भी अपना मिल रहा है। इट्स अबाउट विन विन सिचुएशन। करेक्ट। ओह दैट्स ग्रेट, व्हाई इंडियन ड्राइवर्स। ओके, बट मैं एक चीज कभी नहीं वो रिमूव नहीं कर सकता, बिकॉज द सेफ्टी कंसर्न्स। सब कुछ प्राइजेस इज आल्सो स्टफ, टैग, ऐप, प्राइजेस, इट्स अबाउट द सेकेंडरी थिंग। द फर्स्ट थिंग एंड द प्राइमरी थिंग जो कस्टमर के पर्सपेक्टिव का होगा, इवन माय सेल्फ एज अ कस्टमर, मुझे सबसे पहले सेफ्टी कंसर्न्स की ही बात आएगी। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, चाहे वो ओला हो चाहे वो उबेर हो। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आए हैं जहाँ पे कस्टमर, चाहे वो ओला के हो उबेर के हो, इवन मैं कोई सा दिल्ली का मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था, समथिंग लाइक इन शॉर्ट में, आप मुझे 200 एक्स्ट्रा दो तभी मैं लेके जाऊंगा, मेरे से जस्ट स्टार्टेड द राइड, उसके बाद बोले 200 एक्स्ट्रा दो और गिविंग द थ्रेड्स ऑफ द डे। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुए हैं। लाइक अभी बैंगलोर में मैंने पढ़ा था अबाउट ईयर, आई कांट टेल यू, बट रनिंग ऑटो से वुमन को थ्रो कर दिया गया था। ये जो सिचुएशन है, सेफ्टी कंसर्न्स की बात आती है, इट एक्चुअली वाज राइट नाउ, बिकॉज एसओएस बटन आपको पता है उबेर एंड ओला में होती है, बट इट्स नॉट इवन वर्थ। जैसे मैंने बताया वो 200 एक्स्ट्रा मांग रहे थे दिल्ली में, ये रिसेंट मतलब सिचुएशन हुई थी दिल्ली में उबेर की तरफ से। तो एसओएस बटन ने कस्टमर ने दबाया था, बट नो रिस्पांस टिल 2 days। करेक्ट, व्हाट उबेर इज डूइंग आई रियली डोंट नो। सो सेफ्टी कंसर्न, मेरा कहने का मतलब है कि सेफ्टी जो कंसर्न्स है आप लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं, बिकॉज आप में भी सेम रूल आएगा, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग द ड्राइवर्स, जो कि कस्टमर उससे अनफैमिलियर है ड्राइवर से, एंड ड्राइवर इज आल्सो अनफैमिलियर विद द कस्टमर्स। आई एम गेटिंग माय पॉइंट। यस, सो लेट मी नो हाउ डू यू मैनेज दैट सेफ्टी कंसर्न्स इन योर इंडियन ड्राइवर्स? Okay, so I think the foundation of this business, or any business where drivers kind of people or manpower is working, so integrity of that person becomes critical. So taking in responsibility of this manpower is also challenging one, because we are representing thousands of drivers and they are running on the roads। वो काम कर रहे हैं एक्चुअल रोड पे, एक्चुअल फैमिलीज के साथ, तो वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है फ्रॉम कंपनी पर्सपेक्टिव। तो जैसे मैंने अभी बोला था आपको कि ड्राइवर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर बिजनेस। तो जब भी ड्राइवर्स कोई ऐप डाउनलोड करता है तो उसको मैंडेटरीली हमारे ऑफिस में एक बार आना पड़ता है, राइट। तो हमारे यहाँ पे उसका पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो पर्सनल इंटरव्यू में उसका हम ओवरऑल बिहेवियर देख लेते हैं, उसका ग्रूमिंग कैसा है, उसका ओवरऑल अटायर कैसा है, वेदर ही इज एबल टू मेंटेन दैट फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन, क्या क्या चैलेंजेस है। तो ये सारे चैलेंजेस वो हमारा अराउंड एक 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू चलता है ड्राइवर। इट्स अबाउट अ वेरिफिकेशन प्रोसेस। एग्जैक्टली। तो उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो गुस्से में जल्दी आ जाता है, तो वो सेम उसके ड्राइविंग में भी इफेक्ट आता है। आपने देखा होगा कुछ
यू नो आप रोड पे चल रहे हो, किसी ने आपको टेक ओवर किया, तो वी अगेन गेट बिहाइंड हिम, उसको टेक ओवर करके आई विल गेट रिलैक्स, यू नो दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। तो वो टेम्परामेंट वहाँ पे चेक होता है इंटरव्यू में। सो दीज आर द बेसिक नेसेसरी चेक्स डन बाय आवर ऑफिस एट पर्सनल लेवल ओनली। तभी उसकी फिर एडिशन टू दैट उसका पुलिस वेरिफिकेशन, उसका रेजिडेंस वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें थ्रू होने के बाद ही वो हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव होता है। सो वो सारे चेक होने के बाद भी उसका रेगुलर फीडबैक मैकेनिज्म बिल्ड किया है ऐप में। तो जैसे ही हमें कुछ फीडबैक्स गलत आते हैं या फिर पुअर आते हैं, तो इमीडिएटली एक तो ड्राइवर के ऊपर हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, उसको ब्लॉक किया जाता है या फिर उसको नोटिस देके फाइनल वार्निंग दिया जाता है। सो दैट मीन दिस एंटायर मैकेनिज्म इज वर्किंग 24 आवर्स इन द बैकग्राउंड ऑफ द टेक्नोलॉजी। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। अभी मुझे ये बताइए, ये सब चीजें आपने पूरा एक्सप्लेन कर दी, सेफ्टी कंसर्न्स, प्राइसेस, कस्टमर्स कैसे डील करते, ड्राइवर से कैसे डील करते, आपका बीच में ऐप का क्या रोल है, कैसे, एंड ऑल्सो स्टफ्स, बट हाउ डू यू मेक अ प्रॉफिट ऑफ इट? ओके, बिकॉज कस्टमर को भी कम देना, ड्राइवर्स को भी उतना ही सफिशिएंट देना। राइट नाउ आप कैसे मैनेज करते हैं एज ए इंडियन ड्राइवर्स कंपनी? right. So coming back to the profitability, yes, it is an integral part of any business to run the show. Without profitability, the sustainability will be a question mark for any business. So profitability हम इस एंगल से रखते हैं कि ड्राइवर एंड कस्टमर विल बी एट विन विन पॉइंट, तो रफली वी आर मेंटेनिंग 15 to 20% मार्जिन इन आवर बिजनेस। सो जिसमें हमारा टेक इज वन ऑफ द कॉस्टली अफेयर, जो टेक का कॉस्ट भी कवर होता है। देन दिस वेरिफिकेशन कॉस्ट ऑफ द ड्राइवर्स, कस्टमर ऑनबोर्डिंग कॉस्ट है। सो दिस कॉस्ट गेट्स कवर्ड अंटू दिस 15 to 20% मार्जिन, जिसमें हम एंटायर बिजनेस मॉडल रन करते हैं। ओके, Yes. सो आप लोग एज ए कमीशन चार्ज नहीं करते हैं? No. So it's kind of an inbuilt into the app only. ड्राइवर के ऐप में वो बिल्ड किया है, तो बिलिंग या प्राइसिंग जो आप बोल रहे हो, इट्स मेड इन सच अ वे, सो जहाँ पे कमीशन पार्ट नहीं आता है, इट्स काइंड ऑफ एन शेयर दैट कम्स टू इनटू द पिक्चर फॉर द ड्राइवर्स। सो वो मिनिमम होने की वजह से, नहीं तो चैलेंजेस वो भी होते हैं। इफ़ यू कीप हायर मार्जिन, देन कस्टमर एंड ड्राइवर तो इंटरेक्ट करते ही है। सो प्रोबेबिलिटी है वो फ्यूचर में दे विल कनेक्ट टू ईच अदर। Exactly, this was actually what happening. तो keeping that margin low, that helps both the parties to keep the intact, because वो मार्जिन ज्यादा दिखेगा तो ड्राइवर विल फील बैड, कस्टमर को भी लगेगा कि मेरे हमारे से ज्यादा ले रहे हैं, करेक्ट, देन दे विल कनेक्ट टू ईच अदर। Okay. So that keeping that margin low, so driver and customer feel that उतना तो margin होना चाहिए, how they will survive. So that way it is in running the show. Okay. So I have two ideas. If you don't mind, I can share with you. Yeah. You can implement on the Indian drivers app. Sure, let me know. So basically, आप जैसे ड्राइवर्स प्रोवाइड करते हैं, सो आप क्यों नहीं ओला एंड उबेर के साथ और बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उनके साथ टाइप कर लेते हैं, और उन लोग भी, बिकॉज ओला एंड उबेर हैव अ मेजर ऑडियंस, फ्रेंकली स्पीकिंग, यू आल्सो नो एंड आई आल्सो नो अबाउट दिस, Right. वी आर बोथ फैमिलियर विद इट। सो ओला एंड उबेर के पास वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, so मतलब एक प्लेटफॉर्म है, आप उनके थ्रू उनका यूज क्यों नहीं करते? व्हाई यू डोंट प्रोवाइड द ड्राइवर्स टू द ओला एंड उबेर, और वो ओला एंड उबेर दोनों एक सिस्टम डाल दे कि इफ यू वांट टू हायर द ड्राइवर्स, वी आर हियर, टाइप विद द इंडियन ड्राइवर्स। सो ये एक पर्टिकुलरली थिंग है जो कि आप कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? I'll share my thoughts on that. So typically, Ola and Uber don't need only drivers. They need a driver who owns the car, Right. because vehicle is not provided by Ola. Right. So we are only providing drivers who don't have their cars. Right. Right. So the segment are altogether different one. The segment where Ola and Uber is looking for a car owner with driver. In our case, we are only providing drivers who do not own the vehicles, right? Then only if they have the cars in place, वो तो मेरे पास काम नहीं करेंगे, Right. because गाड़ी खड़ी रहेगी तो EMI कैसे चलेगा उसका, अच्छा, okay. right? So they are two different segments. जहाँ पे कार कम्युनिटी में जैसे अलग सेगमेंट, ट्रक ड्राइवर्स का कम्युनिटी अलग है, टेम्पो का है, कमर्शियल स्पेस में काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स है। सो एज ऑफ नाउ वी आर डीलिंग इनटू वन सेगमेंट, दैट इज कार ड्राइवर्स। और हम कमर्शियल में भी लास्ट 1-2 साल से हमने स्टार्ट किया, जहाँ पे हम टेम्पो ईवीज के लिए भी हमने ड्राइवर दिए हैं। Okay.
So let me come to the tech stuff soon. This all are the things, but let me come to the tech stuff. Tech is nothing but AI. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको पता है ये चीज Yes. और एलॉन मस्क से सब फेमिलियर है इवन यू नो व्हाट ही इज Right. सो एलॉन मस्क ने कहे थे कि एआई विल टेक ऑल योर जॉब्स और जॉब्स की बात आती है तो ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं और एलॉन मस्क भी कहते हैं कि ये जो ड्राइवर्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे थ्रू रोबोट वो ऑटो ड्राइवर हो जाएगा कार बहुत सारे टेस्ला तो ये कर ही नहीं है ऑफ कोर्स यू नो अबाउट दिस सो टेस्ला इज वन ऑफ देम वो ऐसे कार्स बना रहे हैं जो कि ड्राइवर की कोई जरूरत ना हो सो ये चीज जब फैक्टर आएगा इट विल अफेक्ट योर बिजनेस आर यू फैमिलियर विद इट और वो एक लोकल लेवल पे मतलब अफेक्ट नहीं करेगा इट्स अबाउट द मेजर लेवल आपको बहुत अफेक्ट करेगा जब ट्रू ऑटो ड्राइवर मतलब आएगा ऑटो कार आएगी इट्स अबाउट विदाउट ड्राइवर सो आपको क्या लगता है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आने वाले अबाउट 2050 लेट अस कंसीडर अभी तो आने वाले 10 सालों में मुझे नहीं लगता इंडिया में एटलीस्ट ये चीजें होंगी बट लेट अस से 25 इयर्स और 30 इयर्स आफ्टर 30 to 40 years after क्या ये चीजें होगी तो कैसे मैनेज होगी आपको क्या लगता है व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम दिस Okay. So autonomous car requires phenomenal infrastructure. So the roads has to be built in such a way that autonomous car run हो पाए. Right? तो अगर ड्राइवरलेस कार रोड पे चलानी है तो वहाँ पे डिसिप्लिन भी होना चाहिए. राइट अगर हाँ पुणे की ट्रैफिक कंडीशंस देखोगे nobody cares about the traffic norms या फिर रेड लाइट है ऑरेंज है ग्रीन है nobody cares. So in that case, how AI will work? So that is a basic question will arise for any layman also कि यार ये AI कैसे recognize करेगा कि आज कौन ट्रैफिक का रूल तोड़ने वाला है, right? So in foreign countries already Uber is applying few driverless cars on Uber app also जहाँ पे चल रही है already foreign countries में बट इंडिया में अपना तो एक फर्स्ट प्राइमरी थिंग है कि इंफ्रा इज नॉट रेडी टू कोप अप विद द ड्राइवरलेस कार. नितिन गडकरी जी ने भी लास्ट मंथ में बोला कि हमारा कोई प्लान नहीं है अप्रूवल देने का बिकॉज एग्जैक्टली इंफ्रा इज नॉट रेडी एंड हम उतना अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा ये हम बात अभी एग्री नहीं करते हैं एंड वी डोंट हैव एनी प्लान्स टू गिव ग्रीन सिग्नल फॉर द ड्राइवरलेस कार बिकॉज दोनों एस्पेक्ट है एक तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट के पहले वहाँ पे इंफ्रा तो रेडी होना चाहिए वो रोड्स that discipline has to be among the society right without that वो गाड़ी चलेगा नहीं करेक्ट तो वो ड्राइवरलेस कार जब सब सिग्नल तोड़ रहे गाड़ी चलने की तो बात ही नहीं होगी बिकॉज ड्राइवरलेस कार को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको क्या फॉलो करना है बट जो नहीं करना है वो ही इज नॉट अवेयर ह्यूमन बीइंग कैन अंडरस्टैंड दैट मैकेनिज्म बट एआई अभी तक उतना बिल्ड नहीं हुआ है उतना ट्रेन नहीं हुआ है कि वो इंडियन रोड्स के ऊपर चल पाए अभी. अच्छा ओके सो अब क्या लगता है आने वाले कितने सालों के बाद इंडिया कैपेबल है कि ऑटो कार्स चल सके आई थिंक वो एक स्मार्ट जैसे आपने सुना है धोलेरा एक सिटी बन रहा है गुजरात में वन ऑफ द largest city in terms of technology and adoption of smart city features. तो आई थिंक वैसे cities future में अच्छा I will interrupt you ये कहाँ बन रहा है तो उसके बारे में बता दीजिए. ओके सो ये गुजरात में बन रहा है धोलेरा सिटी जहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच ओनली दे हैव अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी जहाँ पे ड्रेनेज से लेके सीसीटीवी हर कॉर्नर सीसीटीवी के अंडर कवर हुआ है और सब चीज़ें क्लाउड पे है इवन देयर मैनेजमेंट ऑफिस इज सेंट्रलाइज सो दैट वे ये सिटी अभी अंडर डेवलपमेंट फेज है और वहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं. आई थिंक उस टाइप के अगर सिटीज़ फ्यूचर में रेगुलरली डेवलप होते हैं तो उस सिटी स्पेसिफिक वो ड्राइवरलेस कार आना और चलना इट्स सीम्स रिलायबल. आई एम नॉट एक्सपर्ट टू दैट फील्ड बट जितना मुझे लग रहा है कि वैसे अगर स्मार्ट सिटीज बनेंगे और तो डेफिनेटली ड्राइवरलेस कार की गवर्नमेंट उस सिटी स्पेसिफिक के लिए अप्रूवल दे सकती है बट इंडिया एज अ सच लार्ज कंट्री तो प्रैक्टिकली इंडिया में रन करना तो अभी तो डिफिकल्ट लग रहा है. आने वाला तो सिर्फ टाइम ही बोल पाएगा आफ्टर 30-40 इयर्स हाउ द इंफ्रा एंड थिंग्स विल मूव अहेड. सो ओवरऑल आपका कहने का मतलब कि आने वाले एक्चुअली 50 to 60 इयर्स तो मुझे मतलब आपको नहीं लगता कि ये चीज और मतलब ऑटो कार्स आ पाएंगे करेक्ट ऑन
इंडियन रोड्स. Right. So city specific आ सकती है जहाँ पे इंफ्रा वैसे बना हुआ है. Okay, Because getting it. basic requirement It's about the roads. roads only, right? Exactly. वहाँ पे डिसिप्लिन भी होना चाहिए. दे आर इन स्ट्रक्चर्ड मैनर जो अभी फॉरेन में चल रही है कंट्रीज में. क्यों चल रही है? बिकॉज दैट They इज have ऑलरेडी बिल्ड, ऑलरेडी रेडी. और लोगों में डिसिप्लिन भी है कुछ हद तक, राइट? सो इफ वी कंपेयर बोथ द एस्पेक्ट, वो हम लैक कर रहे हैं, हम इम्प्रूव भी कर लेंगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली. बट इट्स डिफिकल्ट टू जज कि कितना टाइम लगेगा. Okay. So let me come to the another aspect of the future. जो कि अभी इंडिया में है. Can you guess it what it is? इंडिया में ये सब चीजें है बिकॉज वो एक टाइम पे एम करते थे कि हाँ ये चीजें होगी इंडिया में, और वो आज चीज है. तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजों की मैं बात करता हूँ? इट्स अबाउट द रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन. नो आइडिया. It's about the EV mobility. It's about the electric vehicle. So frankly speaking. So पहले लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी नहीं चलेंगे. मतलब इट्स अबाउट कि लोगों का एम रहता था 1990s के. बट वर्क ऑन चल रहा था और वर्क ऑन करके आज ईवी सबके मींस आई मीन टू से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज बहुत लोग अभी ओला एंड आल्सो स्टफ से इधर बहुत सारी कंपनीज मैन्युफैक्चर करने लगी. इवन कार्स भी इलेक्ट्रिक आने लगी है और गवर्नमेंट आर सपोर्टिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो वो अनदर एस्पेक्ट हो गया. अब नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट एंड आस्क यू, जो ईवी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ये अचानक से कभी कुछ आउट ऑफ बर्न हो जाते हैं. मिस एक धूप में खड़ी रही. वन ऑफ माय फ्रेंड्स स्टोरी, धूप में खड़ा कि अबाउट कोई सी कंपनीज की थी, आई विल नॉट टेक द नेम, लेट अस टेक द एग्जांपल एक्स ब्रांड की थी. ऑटोमेटिक धूप में रखे बर्न आउट हो गई. ओके, इट्स एन अनदर एस्पेक्ट बट इट्स लॉस मिस इट्स बहुत मैटर करता है ये सब चीजों के लिए. बिकॉज कस्टमर अगर खरीद रहा है 2 lakhs की 1,50,000 की और वो ऐसे ही बर्न आउट हो जाए, इट डजंट सेंस मेक अ सेंस. ओके, नाउ इन द ट्रांसपोर्टेशन पर्सपेक्टिव आप ये चीजों को ईवी मोबिलिटी ये जो कर रहे हैं मींस इन द सेंस ऑफ इतना हमने रिसर्च किए थे कि आप इस पर्सपेक्टिव में इस एक्चुअली ईवी मोबिलिटी के फील्ड में आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करें टू द डिलीवरी बॉयज एंड आल्सो स्टफ. मींस एक लीज पे लेके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है लाइक वो हो गया, कार्स हो गई, कार्स इन द नॉट इन द सेंस ऑफ बाइक्स हो गई, इलेक्ट्रिक स्कूटीज हो गई, तो आपको रेंट पे लीज पे लेके आप प्रोवाइड करते हैं लीज को टू जोमेटो एंड स्विगी. तो ये सिस्टम कैसे वर्क करता है मुझे वो बताइए. ओके, सो प्राइमरीली जो मैंने हमारा सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस अभी तक जो एक्सप्लेन नहीं किया है दैट इज B2B वर्टिकल. ओके, जहाँ पे हम लार्ज कॉर्पोरेट को ड्राइवर्स प्रोवाइड करते हैं. तो जैसे कुछ हमारे क्लाइंट्स है, टाटा ग्रुप है, महिंद्रा है, बॉश, ZF, फॉरिशिया. तो ऐसे कुछ 75+ लार्ज कॉर्पोरेट के कॉन्ट्रैक्ट्स है जहाँ पे व्हीकल्स आर ओन्ड बाय द कॉर्पोरेट्स, लेकिन ड्राइवर्स हमारे काम करते हैं वहाँ पे मंथली बेसिस पे लार्ज कॉर्पोरेट में. सो वी हैड बीन वर्किंग इन दिस स्पेस फॉर मोर देन डेकेड नाउ. तो जब कॉर्पोरेट से हमारा रेगुलरली डिस्कशंस होते हैं तो ये ईवी मोबिलिटी का भी पॉइंट आता था कि नाउ वी आर लुकिंग टू एक्सप्लोर दैट कार्बन क्रेडिट्स जो कॉर्पोरेट को एक बेनिफिट मिलता है कार्बन क्रेडिट का, एंड दे आर एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी कि हमारे पास अगर ईवीज रहती है, इलेक्ट्रिक कार्स अगर हम लेते हैं तो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ गेटिंग कार्बन क्रेडिट फॉर द कॉर्पोरेट्स. ओके, तो फ्रॉम दैट एंगल हम देख रहे हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं. So this is under डेवलपमेंट फेज जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज की इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्लीट बिल्ड करें एंड दैट विल डिप्लॉय टू द लार्ज कॉर्पोरेट. With respect to driver management for EVs, yes, we have already done multiple projects for EV fleet owners. जहाँ पे मुंबई का कैबी नाम का एक फ्लीट ओनर है जिनके लिए हमने अराउंड 200+ ड्राइवर डिप्लॉय किए हैं और उनका फ्लीट मैनेज हम कर रहे हैं. तो ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जहाँ का फ्लीट इज़ कम्प्लीटली EV बट द ड्राइवर मैनेजमेंट इज टेकन केयर बाय अस. So we got a fair idea about this business model of EV management, and gradually in a couple of months time probably we would be in a better position to give you more idea about this mobility business. Okay. So thank you sir. ये सब चीजें मैं फैक्टर समझ गया. सो ओवरऑल मुझे अभी तक जितना समझा है इंडियन ड्राइवर्स जो है वो एक ऐप है जिसमें आके मैं शेड्यूल कर सकता हूँ. इन द सेंस ऑफ मैं ड्राइवर्स को शेड्यूल कर सकता हूँ कि मेरे टाइम पे ये आ जाए, उस टाइम पे मैं उनको कार्स बता दूंगा ऑनलाइन कि ये मेरे पास कार है, मुझे चाहिए ड्राइवर इस पर्सपेक्टिव के लिए, मुझे बेंगलोर जाना तो 4-5 घंटे के लिए चाहिए, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट करके आप प्राइस अप्रोक्सीमेटली बता देते हैं. Correct. It's about that similar to Orlando, like similar not in the sense of that. Correct. So मुझे अभी तक जितना समझा है ये चीजें. बट आप क्या कॉर्पोरेट फील्ड में भी इन्वॉल्व हैं? Yes, definitely.
तो ब्रॉडली वी हैव टू लाइन्स ऑफ बिजनेस, B2C एंड B2B। जैसे आप ऐप देख रहे हो, जैसे आप ऑन डिमांड पे ड्राइवर्स बुक कर सकते हो, बट देर वहाँ पे एक दूसरा भी ऑप्शन है, आप मंथली बेसिस पे भी ड्राइवर हायर कर सकते हो। तो जैसे आपका रेगुलर रिक्वायरमेंट है, सम पीपल रिक्वायर ड्राइवर्स टू पिक एंड ड्रॉप देयर चिल्ड्रंस, जिनको फैक्ट्री में डेली आना जाना होता है, बट डिस्टेंस काफी लंबा होता है, राइट? So from that angle इनका रिक्वायरमेंट डेली होता है, दे डोंट नीड ड्राइवर वंस इन वीक, उनका रिक्वायरमेंट डेली होता है। तो उनके लिए हमारे पास मंथली ड्राइवर सर्विसेज भी है, जो कस्टमर ऐप के थ्रू भी रिक्वायरमेंट डाल सकता है, एंड आवर रिलेशनशिप मैनेजर रीच एट देयर प्लेस एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट इज द इंडिविजुअल्स के लिए एक मंथली बेसिस का सर्विस है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कॉर्पोरेट, यस, B2B हमारा एक स्पेशल वर्टिकल है, जिसके अंदर हम लार्ज कॉर्पोरेट्स को बिजनेस ड्राइवर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे कस्टमर्स में टाटा ग्रुप कंपनीज है, बॉश, महिंद्रा, फॉरिशिया, सो अराउंड 75 फैंटास्टिक, ग्रेट। तो 75 प्लस लार्ज कॉर्पोरेट्स है जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं सालों से। तो व्हीकल्स आर ओन्ड बाय द कस्टमर्स और ड्राइवर मैनेजमेंट इज टेकन केयर बाय इंडियन ड्राइवर्स। तो इसमें मेन चैलेंज जो हमने देखा है कॉर्पोरेट में कि this space is more or less managed by the manpower suppliers, जो typically facilities companies होती है, जो housekeeping security guards देते हैं। बट अगर ड्राइवर्स मैनेजमेंट उनके पास है, लेकिन कोई ड्राइवर 2 दिन के लिए छुट्टी पे जाता है, तो रिप्लेसमेंट उनकी पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज वो रेडी पूल नहीं होता है ड्राइवर्स जो हमारे पास है, राइट? सो वन ऑफ द प्रॉब्लम इज रिप्लेसमेंट। इमीडिएटली ड्राइवर ने जॉब छोड़ दिया, सो इट बिकम्स हेडेक फॉर द HR एंड एडमिन पीपल, बिकॉज द ड्राइवर इज वर्किंग फॉर द CXO लेवल, किसी वो MD के लिए काम कर रहा है, डायरेक्टर के लिए काम कर रहा है। सो वो एक दिन के लिए छुट्टी होगा तो भी वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कंपनी में, राइट? और मैन पावर सप्लायर तो हाथ खड़े कर देता है, बिकॉज उनके पास वो रेडी पूल नहीं होता है। हाउसकीपिंग का दे विल हैप्पी टू गिव, बट यहाँ पे वो ड्राइवर MD के बाजू में बैठ रहा है, सो वो एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है, राइट? Managing director of a company would be least bothered who is sitting at the security gate, maybe, but he more serious about the person he's residing with his family in the car. वो फैमिली में के साथ ड्राइव कर रहा है, बैठ रहा है दिन भर उसके साथ, सो इट्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स वर्क। तो उस वे में उनके पास रेडी पूल नहीं होता है जो हमारे पास है। दैट्स हाउ वी गेट लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द ड्राइवर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम द लार्ज कॉर्पोरेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Okay, so actually corporate field में भी आप involved हैं। Yes. So overall let me come to the point. सब लोग स्टार्ट करते हैं इस स्पेसिफिक पॉइंट पे, सबका इवन हैव यू स्टार्ट विद दिस, अपनी कंपनी जब स्टार्ट की 3 ड्राइवर, तो आपके भी दिमाग में था कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके रिवेन्यू में बनाऊंगा। ऑफ कोर्स इवन आई हैव स्टार्टेड दिस, अब मुझे भी लगता है कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके रिवेन्यू बना के इसे सस्टेनेबल करना है, बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट द वन साइडेड, फ्रैंकली स्पीकिंग। ऑफ कोर्स सेकंड द लास्ट, आई थिंक वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इज कैसे और कितना रिवेन्यू अभी तक आप जनरेट कर चुके हैं थ्रू ऑल ऑफ दिस इंडियन ड्राइवर्स कंपनी? ओके, सो एज आई मेंशन, हमारे 3 टाइप के बिजनेसेस है। एक B2B है जो लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए, B2C में 2 वर्टिकल्स है, ऑन डिमांड है और मंथली बेसिस है, राइट? तो वैसे हमारे पास ये 3 चैनल्स हैं। अभी तक हम सिर्फ पुणे मुंबई कर रहे थे, रिसेंटली वी गॉट अ ब्रांच इन बैंगलोर आल्सो। तो रफली वी आर डूइंग अराउंड 1 CR plus top line for this business as of now, and which is growing over the period of time, because COVID में we got a zero from whatever we built for a decade. वो हमारा COVID में zero हो गया था, and then we come back from that COVID phase. As of now we are bootstrapped, we have not raised any money from the market or banks also. So that way we are grown organically in initial period, but I think this is the time that growth will be phenomenal in coming time, and we are expecting that additional cities will be added in next financial year. फैंटास्टिक सर। सो आप 15 साल से ये फील्ड में है ट्रांसपोर्टेशन के, अबाउट 2009 में आपने ये चीजें स्टार्ट की थी इंडियन ड्राइवर्स कंपनी, राइट? करेक्ट। ग्रेट। सो 15 इयर्स के इस ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में है आपको इसके अलावा ड्राइवर्स एंड जो ओला कर रहे हैं और स्टफ्स के अलावा आपको क्या लगता है कि आज भी कुछ मिसिंग पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज, ट्रांसपोर्टेशन में, या कोई इशू है ट्रांसपोर्टेशन का इंडिया में? ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली जिससे रिजॉल्व करके $1 बिलियन बिजनेस बना सके, जैसे आपने किए करोड़ों का बिजनेस बनाया है ओनली फॉर कनेक्टिंग द ड्राइवर्स एंड द कस्टमर्स, राइट? और क्या लगता है आप? I think
transportation field is one of the largest industry in India, because the way in which we are growing, the way logistic is happening over the period of time, the way export are going year on year in last decade. So that way this industry is growing, but at the same time the requirement is also growing very rapidly. Organized players already आ चुके हैं, या फिर वो रेगुलरली आ रहे हैं. जो लास्ट माइल डिलीवरी एक अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स में बचा हुआ था, राइट, जिसको हम बोलते हैं कि टेम्पो में जो डिलीवरी होता है, रिटेलर्स होलसेलर का ये जो मूवमेंट होता है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ $1 billion बिजनेस अगेन, विच इज अगेन ओपन टू एक्सप्लोर, जहाँ पे ऑलरेडी प्लेयर्स कुछ आए हैं, but it's a very huge market opportunity still if people are exploring that, and that is growing again. Okay. So transportation में कुछ स्टार्टअप्स ला के करोड़ों बिजनेस बनाया जा सकता है. Definitely. Okay, because the transportation जितना अभी पता है कि it's not a broader term. Because उतना बिजनेस मैंने हिसाब से मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा बिजनेस एक ट्रांसपोर्टेशन बन सकता है. अभी ऑफ कोर्स ओला एंड उबेर आ गए तो उससे पर्सपेक्टिव एक अलग बना, माइंडसेट अलग बना, एंड आल्सो मेरे दिमाग में ओला उबेर एंड इंडियन ड्राइवर्स ये नाम जरूर रहेगा. Thank you. So the last question is about, sir, any books you want to share with the audience? Like, because you have started the entrepreneurs and you are the founder and CEO of Indian Drivers. Yes. So आपने अपने जर्नी से क्या सीखा, और किसी को अपना खुद का स्टार्टअप करना है, नॉट अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन फील्ड, इन पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल अदर फील्ड, सो आप उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे? हाउ यू हैव बिल्ड इट अ करोड़ बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन करोड़ बिजनेस. Right. I think when I get into business, I was very new to this industry. I was new to the business itself, because Okay. I started from scratch, because I had no idea about how business model is prepared, how business works. But I think the willpower was one of the area that dream of having our own business that helped me to get into the business and explore the opportunities. So I think over the period of decade, I have understood that the association is one of the factor which helps us in life, because I got a lot of people, I got a mentors in my life who associated with me, who helped me, who guided me in perfect Mentor. way. Okay. So that way, I think association is one of the critical aspect of business, because if you get surrounded with the correct people, so they will show you the correct path. Right? Right. So I am firm believer that your networking association matters a lot in life. Second aspect, I think we have to be humble in life, whatever the stage we are. So it has become very integral part of any personality. If we are growing, then if we are growing our attitude too, so it's become difficult to get to the next level too. So be grounded, be humble, and the journey will become more easy. That's it. Okay. So I think willpower and the connections matters a lot. Correct. Exactly. Fantastic, sir. So I think that's all from my end, and thank you for being with us on Gender Story, sir. Thank you so much. So this is Aryan Gupta signing off for today, guys. Thank you.